Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 103. 8th of January 1994, Waiz at Fort Hall Jamaat Khana of Nairobi. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى إلى قيامة جی حق سو حقیقت سے بندے جنہیں کمائی اس دل بھی تر ہوئی روشنائی حق سو حقیقت بندے جنہیں کمائی اس دل بھیتر ہوئی روشنائی اللہ گن تیرا یا گن تیرا صاحب گن تیرا یا شاہ اوگن بہت ہمیرا مولانا حضر امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی علی محمد. زندہ رہو. ساری دنیا کے اندر ہم اسماعیلی لوگ جب جماعت خانے کے اندر دعائیں مانگتے ہیں کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہیں بہت سی دعائیں مانگتے ہیں. اس میں ایک دعا یہ ہوتی ہے یا مولا ہم کو حقیقت سمجھ دے. ہم بہت دفعہ چیزیں مانگتے ہیں بولتے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں پڑتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ارادے سے جان کے بوجھ کے سمجھ کے سوچ کے جب ہم خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کچھ مانگتے ہیں تو ہماری کانشنس اس کے ساتھ ہوتی ہے. اسی لیے حضرت امام اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ تم اپنی دعا جو عربی زبان کے اندر ہے اس کی میننگ بھی سمجھو اور دعا پڑھتے پڑھتے ہم ان لفظوں کے اوپر جو ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں ہم اس کا مطلب بھی سمجھیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لنا ذنوبنا تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اے ہمارے اللہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توسلوا عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود مانگو وسیلہ اپنی مصیبتوں میں اپنے مولا کر کے جو تمہارے اندر حاضر بیٹھا ہے. جب ہم یہ چیزیں سمجھ کے پڑھیں تو ہماری کانشنس اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمارے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارے تمام آدمیوں کے گھروں میں الیکٹریکل چیزیں ہیں. یہ دیکھو سامنے ٹیپ ریکارڈر ہے. اگر میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کی بیٹری کے ٹرمینل کے اوپر میں رکھ دوں تو یہ بند ہو جائے گا کیونکہ کرنٹ کا فلو سٹاپ ہو جائے گا اور یہ کاغذ اس کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی. بالکل اسی طرح جب ہم کوئی چیز نہیں سمجھتے اور بول رہے ہیں تو ہماری سمجھ اور ہمارے الفاظ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا یا کچھ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کرنٹ فلو نہیں ہوتا. اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا دل بیدار ہو جاتا ہے. یعنی بیدار کا مطلب جاگ اٹھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایک آدمی نے کوکا کولا مانگا. اب اس کے سامنے بوتل کھول کے کوکا کولا اس کو دیتا ہے وہ پی لیتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی
कोका कोला लाते लाते खुद खोल के पहले से लाए और पहले खुद चख लेवे और ये देख लेवे, तो क्या ये पिएगा? हाँ, अगर वो आड़ के पीछे रूम के अंदर थोड़ा सा पी के ले आवे तो ये पी लेगा, क्योंकि इसको शक नहीं। मगर जब वो आंखों से देख लेवे कि इस आदमी ने कोका कोला पी के फिर मुझे दी है, तो वो नहीं पिएगा। क्या फर्क है दोनों में? उसने देखा है, अब उसको ये यकीन है इस बात का। जब उसने नहीं देखा तो उसको कोई यकीन नहीं। हमारा जो यकीन है, हमारा जो बिलीफ है, अगर उसके अंदर कोई भी दराज पड़ गई यानी क्रैक पड़ गया तो वो यकीन यकीन नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। हकीकत का मतलब रियलिटी। और हम ये समझते हैं क्या खुदाया, हम तो हकीकती समझते, लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि हकीकती समझ क्या है? हमें ये चीज का पता होना चाहिए। मोमिनो, हमारा इस्माइली मजहब सारे इस्लाम को अगर एक बदन मान लेवे, इस्लाम एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी, तो मैं मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार का आपको फरमान सुनाता हूं कि जो उसने एक तालिका भेजा था 1952 या 3 के अंदर, दार एस सलाम के अंदर। मौला फरमाया कि इस्माइली फेथ इज लाइक ए ब्रेन इन द बॉडी ऑफ इस्लाम। इस्लाम अगर एक बॉडी है तो इस्माइली फेथ उसका ब्रेन है। बॉडी 200 रत्तल की होती है, 150 मान लो, 200 मान लो। ब्रेन कितना है? 8 साढ़े 8 अंश का। हमारा जो ये अपर ब्रेन है, जो हमारे फ्रंट में है, यानी हमारी पेशानी के अंदर है, फोरहेड में जो ब्रेन है, इसको ग्रे मैटर कहते हैं। ये 8 साढ़े 8 अंश का छोटा सा लम्प है। मगर ये जो 8 साढ़े 8 अंश का है, ये सारी खुदा की क्रिएशन में जो कुछ है वो सब इसमें है। कि सदरदिन कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है, खुदा की जितनी क्रिएशन के अंदर यूनिवर्स में जो कुछ है वो पिंड है, वो तुम्हारे अंदर है। यहाँ पिंड से मतलब बॉडी, मगर हमारे हार्ट के अंदर के, हमारे फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर के, किडनी के अंदर नहीं, क्योंकि सेंसेस जो हैं तो वो ब्रेन में है। 1.5 रत्तल का, 1.5 पाउंड का हमारा लोअर ब्रेन है कि जो हमारे पीछे है। ये लोअर ब्रेन जो है, इसमें मोटर है, इसमें नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर पावर हाउस है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं और हजारों इसके अंदर से वायरें निकल के, जिनको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, हमारे सारे बदन के अंदर फैला हुआ है। लेकिन ये जो हमारा लोअर ब्रेन है, ये कलर के अंदर जरा लाइटर है, ग्रे नहीं, मगर इसमें अकल नहीं, इसमें समझ नहीं, इसमें बुद्धि नहीं, इसमें इंटेलिजेंस नहीं। जो कुछ भी है वो फ्रंट के अंदर आधे रत्तल का ये ब्रेन है कि जो 200 रत्तल की काया से वो ज्यादा कंट्रोल करने वाली आला दर्जे की इंपॉर्टेंट चीज है। और ये हकीकत है कि हमारे ब्रेन के अंदर वो लॉबीज हैं, अलग अलग लॉबीज के, जिसको आज तक भी साइंस कंप्लीटली हार्नेस नहीं कर सकी। बाज आदमी ये कहते हैं, क्योंकि ये चीजें गिनी नहीं जा सकती, महज गेस वर्क होता है। बाज साइंटिस्ट का ये कहना है कि इसके अंदर 30 बिलियन सेल्स हैं। 30 बिलियन सेल्स हमारे अपर ब्रेन के अंदर हैं और हर एक सेल एक पावर हाउस की तरह काम करता है। मैं आपको यहाँ कोई मेडिकल चीजें बताने के लिए नहीं आया, लेकिन दुनिया के तमाम शास्त्रों में, दुनिया के अंदर जो मजहब के स्क्रिप्चर्स हैं, उनके अंदर किसी न किसी हद तक फिजिकल साइंस का जिक्र किया गया है। हमको हमारे पीरों ने एक किताब लिख के हमको ऐसी बहुत सी चीजें बताई। 600 बरस पहले गुरु सदरुद्दीन ने किताब लिखी, उसका नाम है गिरभा वली। गिरभा वली का मतलब यह है कि वो चीज कि जो छुपी हुई है,
इसी में से गर्भ निकला। औरत जब भी हामिला होती है तो कहते हैं गर्भवती हुई, यानी उसके अंदर कोई चीज छुप गई। प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं वो नजर नहीं आती जब तक कि उसकी डिलीवरी न हो गए। 20,000 दिन की ये बुक 40 पेज की है, लेकिन अगर उसका ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो 400 पेज भी शायद पूरे न होंगे नक्शल के अंदर। और उसमें है क्या? उसमें यह है कि खुदा ने सृष्टि यूनिवर्स किस तरह क्रिएट किया और क्यों क्रिएट किया। फिर जब ये बॉडी के ऊपर आते हैं तो बॉडी की स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, कौन सी चीजें जिनसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ केमिकल एक्शन है। जब भी केमिकल बैलेंस खराब हो जाता है तो जुदी जुदी किस्म की बीमारियां होती हैं, और ये बीमारियां केमिकल एक्शन और रिएक्शन की वजह से है। अगर हमारा बैलेंस ठीक है, केमिकल बैलेंस, तो हम बिल्कुल परफेक्ट हालत में रहते हैं। हमारे घरों के अंदर, हमारे एप्रेटिस के अंदर, हमारे कैलकुलेटर्स के अंदर छोटी छोटी बैटरियां हैं। ये बैटरी सेल AA 1.5 वोल्टेज है इसमें, लेकिन अंदर क्या है? केमिकल सॉल्यूशन है। इसलिए वो केमिकल सॉल्यूशन की वजह से इसकी पोलैरिटी बन जाती है, माइनस है प्लस है। हमारे बदन के अंदर भी 22.5 वोल्टेज है। ये सेल में तो 1.5 वोल्टेज है, लेकिन हमारे एक जवान आदमी के बिल्कुल एब्सोल्युटली हेल्दी बॉडी में 22.5 यानी 22.5 वोल्टेज की हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। और ये इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से काम करती है हमको ये भी जानना चाहिए, क्योंकि ये चीज समझ आने से हमको सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत में रास्ते आसान हो जाते हैं। किस चीज का एक्शन रिएक्शन पैदा करता है और क्या करता है वो हमें समझ आती है। ये हमारे पिछली तरफ कानों के दोनों तरफ थोड़ी सी उभरी हुई हड्डी है। इधर हमारा ब्रेन जो एक सॉल्यूशन के अंदर हमेशा स्विम करता रहता है। हमारे ब्रेन के चारों तरफ पानी है। वो पानी है ऐसा पानी नहीं, लेकिन लिक्विड है। ये जो फ्लूइड है वो भी केमिकल है, उसके अंदर ब्रेन रहता है। और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर भी एक जुदी किस्म का सॉल्यूशन है। तो हमारे ब्रेन का सॉल्यूशन, सेरेब्रल सॉल्यूशन, और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका सॉल्यूशन दोनों मिलते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब भी इस जगह हमारे पीछे कानों के दरमियान जहां केमिकल फैक्ट्री है, हकीकत में जो कि हमारा लिवर है वो भी एक केमिकल फैक्ट्री है, मगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो आदमी पागल हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, इंसेन हो जाता है। उसको फिर राइट रॉन्ग का पता नहीं लगता। उसकी नजर में वही चीज होती है कि जो उसके दिल में आती है, बाहर की हकीकत का उसे कुछ पता नहीं चलता। ये तो एक फिजिकल बात है। यही चीज मेंटली होती है। जिस तरह हमारी फिजिकल बॉडी केमिकल से चलती है, जिस तरह हमारा तमाम एक्शंस, खाना पीना, हजम प्योरली केमिकल एक्शंस के ऊपर है, इस तरह से एक सुपर मैटर की तरह हमारा जो माइंड है, माइंड मैटर नहीं है मगर मैटर में से पैदा होता है, यानी ब्रेन में से पैदा होता है। और किस तरह खुदा उसको पैदा करता है, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और यह मिस्ट्रीज को समझना हमारे लिए जरूरी है। दुनिया के अंदर आए, खा पी के गुजर गए, और हमने पता भी नहीं लगाया कि खुदा ताला ने ये ऐसी बड़ी क्रिएशन की। अरे मुझको खुदा ने क्रिएट किया तो मैं क्या हूं? अगर इंसान को अपनी हकीकत का पता चल जाए तो उसकी नजर के सामने नूर के पर्दे उठ जाएं। इंसान के अंदर वो सब कुछ है जो सारी क्रिएशन के अंदर है। इस्माइली मजहब का जो एसेंस है तो वो ये है कि हम खुद को समझें, सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए। इस्माइली मजहब ने इस्लाम के तमाम दूसरे फिरकों को लीड किया है। ये इस्माइली मजहब है जिसको हिस्टोरियंस ने और दूसरे उलमाओं ने बातुनिया कहा है। बातुनिया इसलिए कि हम लोग खुदा की मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं, हम लोग खुदा की
छुपी हुई बातों के भेद को समझते हैं, हम खुदा ताला की हकीकत को जानते हैं, इसलिए हमारा नाम बातनिया पड़ गया। एक जबरदस्त आलिम इस्लाम के अंदर पैदा हुआ। मुसलमानों ने और गैर मुसलमानों ने इस आदमी के ऊपर हजारों किताबें लिखी और उसकी फिलॉसफी के ऊपर आज भी लिखा जा रहा है। इंग्लिश में भी उसके लिए बहुत लिटरेचर है। और वो मुसलमानों का इमाम गजाली एक बहुत बड़ा फिलोसोफर। जब उसने इस्लाम की स्टडी शुरू की, उसको कहीं से जवाब न मिले और वो जवाब उसको इस्माइली मजहब में मिले, वो इस्माइली बन गया। मगर इस्माइली जब बन गया तो उस जमाने के खलीफा ने उसका मुशारा बंद कर दिया। मुसलमानों ने गालियां निकाली, मार भी पड़ी, और इस ख्याल से कि अगर वो इस तरह से आइसोलेट हो जाएगा तो वो अच्छी तरह से इल्म की खिदमत नहीं कर सकेगा। वो वापस सुन्नी हो गया और एलानिया उसने कह दिया, अनाउंस किया कि मैंने इस्माइली मजहब छोड़ दिया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो इस्माइली हुआ या नहीं हुआ। मुझे कहने का मकसद ये था कि उसने बहुत कोशिश की, ग्रीस में जाके ग्रीक फिलोसफी पढ़ी, हिंदुस्तान भी गया, दुनिया की तमाम जितनी भी चीजें उसके हाथ में आ सकी, मगर उसको अगर सॉल्यूशन मिला, सेटिस्फैक्शन मिली तो इस्माइली मजहब में से मिली। क्योंकि हमको इस्माइली मजहब के अंदर वो हकीकतें बताई जाती हैं कि जो कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। सदर दिन की एक छोटी सी किताब गिरबावली 40 पेज की, उसके अंदर पीर ने हमको अंदर की हकीकतें जाहिर करते 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 पर्दे खोल दिए कि नूर क्या है, नूर क्या है। नॉर्मली हम कहते हैं नूर लाइट है, मगर अरबी जबान का जो लफ्ज नूर है उसका ट्रांसलेशन दुनिया में किसी जबान में हो ही नहीं सकता। क्योंकि नूर के अंदर इंटेलिजेंस है, नूर में अक्ल है, नूर में कुव्वत है, नूर में पावर है, नूर में वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं कि जो अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स हैं। क्यों कि खुदा खुद नूर है और वो नूर खुदा ताला ने एक स्पार्क की तरह इंसान के अंदर रखा है। इसलिए हमको अपनी हकीकत का पता लगाना चाहिए। हकीकत क्या है? जब इंसान को हकीकत का पता लग जाता है तो फिर वो कभी बदलता नहीं, किसी हालत में भी भले मर जाए। मैंने यही छोटी सी मिसाल दी कि अगर आपके सामने छुप के अगर कुछ आपके खाने में थूक डाल देवे या कुछ और पॉइजन डाल देवे और आपने देख लिया तो आप किसी भी कीमत के ऊपर वो नहीं खाओगे। लेकिन अगर कोई आदमी जिस पर आपको भरोसा है और वो कोई चीज लेके आया और उसने उसके अंदर जहर डाल दी हुई है, आपको बिल्कुल पता नहीं है और आप खा रहे हो, तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि हकीकत आपसे छुप गई, हकीकत का पता न लगा। एक और छोटी सी मिसाल दूं आपको ये समझने के लिए कि मेरा मतलब हकीकत से क्या है। दलीलें तो बहुत हो सकती हैं। एक बहादुर पक्का इस्माइली कानपुर के अंदर चमड़े की दुकान थी, बाद में तो बड़ा मशहूर आदमी बना, मैं आपको कहूंगा। उसकी फैमिली का सबसे बड़ा ये उसूल था कि सूरज इधर से उधर चला जाए, जमात खाना न छूटे। शाम को 6 बजे दुकान बंद कर रहा था। आगरा का एक व्यापारी, आगरा में बूट बहुत बनते हैं, सारे हिंदुस्तान की बूटों की जो इंडस्ट्रीज है वो आगरा में है, मगर आगरा में चमड़ा नहीं होता, कानपुर में चमड़ा बहुत है। आगरा का एक व्यापारी कानपुर आया और उसका इरादा ये था कि शाम के वक्त वो अपना बिजनेस वगैरह ऑर्डर दे देवे तो रात को 12 बजे की गाड़ी में वो वापस चले जाएंगे। 2 से 3 घंटे का तो सफर है। लड़ाई का जमाना था, 1939 में लड़ाई लगी और ये मैं बात करता हूँ 40 के एंड, यानी तकरीबन साल हो चुका था, चीजें महंगी हो रही थी। 6 बजे ये भाई इस्माइली अपनी दुकान बंद कर रहा था और वो व्यापारी आया, कहता है मुझे 2-2.5 लाख रुपए का माल चाहिए। उसने कहा खुशी के साथ, लेकिन कल सुबह आना। कहता मैं कल नहीं आऊंगा, मैं रात को वापस जाता हूँ। कहता है कुछ भी करो, मैं अभी दुकान खुली नहीं रख सकता। रिक्जी किया। इस आदमी ने सोचा 2-2.5 लाख रुपए का मैं इसको व्यापार देता हूँ
اور یہ ایسا بد دماغ آدمی ہے، پراؤڈ ہے کہ اس کی پرواہ بھی نہیں، اس کو غصے ہو کے چلا گیا۔ اس نے تو دکان بند کی، گھر آیا، نہایا دھویا، چائے وغیرہ پی، سارا گھر جمع کرنے گیا۔ دوسرے دن صبح جب اس نے 8 سوا 8 بجے دکان کھولنے کے لیے دکان پہ آیا تو وہ رات والا آدمی اس کی دکان پہ بیٹھا، اس کو دیکھ کے پوچھا کہ سر کیا ہوا؟